what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go big, really good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide in just a halo. Not everyone in life is got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost, thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off from the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. Keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. Be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything that is getting salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. What is up, warriors? What is up, YouTube? वॉरियर क्लैन इन पावर। अभी मैं जस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ सैटरडे मॉर्निंग एंड पढ़ रहा था फिज़िकल एजुकेशन चैप्टर पढ़ रहा था। मैं दिखाता हूँ कौन सा चैप्टर है। आई वॉज स्टडिंग रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये सब पढ़ रहा था। और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ रहा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होती है, जैसे फैक्टोरियल डिज़ाइन। ये सब थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। ये कोवेरियंस डिज़ाइन, ये सब समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इन सब को समझना ज़रूरी है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फ्यूचर में जब हम पीएचडी करेंगे तो उसके पर्सपेक्टिव से भी, कि कोई भी रिसर्च डिज़ाइन क्यों हम यूज़ करते हैं या फिर क्या होती है, मैकेनिज़्म क्या होता है। यही टॉपिक पढ़ रहा था मैं। एंड अब जा रहा हूँ मैं, मील बनाऊँगा, खाऊँगा, खा के फिर फ्रेश होऊंगा थोड़ा एंड फिर से पढ़ूँगा। पढ़ने के बाद फिर से आज सैटरडे है, ट्रेनिंग करेंगे, तो
मिलते हैं आपसे। ब्लिंकिट से पार्सल आ गया है, मील्स, ओट्स, 1 लीटर दूध। नेक्स्ट अप वी हैव आवर पनीर, अगेन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स। उसके बाद आवर फेवरेट पीनट बटर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ओट्स। तो इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे। गर्मी आ गई है, धूप भी काफ़ी निकल रहा है। इसको रख के चलते हैं अंदर मील बनाने। अभी मैं जस्ट अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के रेस्ट कर रहा था। तो ये है वो पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा था, पेपर 2 फिज़िकल एजुकेशन का। एंड जैसे उसको सॉल्व करके ख़त्म किया एंड भूख लग गई है, अभी जा रहा हूँ खाने, खाऊंगा। उसके बाद ट्रेनिंग भी जाना है, जिम भी जाना है। सो लेट्स गो। तो ये रहा मेरा मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट, 200 में से 118 नंबर आए। एंड अभी बैठ के मुझे इस पेपर का अपना एनालिसिस करना है, क्या गलत हुआ, क्यों लो स्कोर आया, कौन कौन सी गलतियां मैंने कमिट की दोबारा। ये आंसर शीट में से सब देखूंगा और मिलाऊंगा कि कहाँ कहाँ गलत है। और मेरी नोट्स की कॉपी नई वाली, इसमें सब नोट करेंगे, अपनी सारी मिस्टेक्स नोट करेंगे एंड देखेंगे कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स मेरे हो रहे थे। फ़िलहाल के लिए तो मील बनाने का टाइम है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like So this was my post-workout physique update. 88 kgs। यहाँ से फिजिक को और इम्प्रूव करना है। देखते हैं कितना जाता है जून तक, ऑफ सीज़न। जब तक आनंद सर नहीं बोलते कटिंग स्टार्ट करना है, तब तक देखते हैं कहाँ तक जाता है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। फिजिक काफ़ी सही लग रही है। तो यही थी मेरी फिजिक अपडेट, एम्प्टी स्टमक। आई होप अच्छी लगी होगी आपको। एंड इसी फिजिक को मुझे और इम्प्रूव करके और डेंस करना है, पर्टिकुलरली लोअर बॉडी साइड में। अपर बॉडी में डेंसिटी आ गई है और लानी बाकी है, बट आई गेस लोअर बॉडी अभी भी थोड़ी सी लैग कर रही है, तो उधर देखना है। एंड शोल्डर्स रीजन को और डेवलप करना है। काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स हैं जिनको इस साल हम टारगेट करेंगे व्हेन इट कम्स टू आवर बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स। सो
इधर का बॉडी बिल्डिंग का तो हमारा ये गोल अपना चल ही रहा है पैरेलल में। कल सुबह जब मैं पढ़ाई करके उठा एंड जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। वो चीज़ थी कि मेरा जो बाल है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। मैं दिसंबर को देखूं, जनवरी को देखूं एंड अब फैब एंड को देखूं तो हेयर काफ़ी ग्रो किया है। एंड यू नो व्हाट, पिछले साल के मिड अप्रैल से लेके 15 अप्रैल से लेके ये जो जैन का एंड फेज रहा है ना, मतलब 15 अप्रैल 2025 से लेके एंड ऑफ जनवरी 2026 ये जो पूरा फेज था ना, मतलब ऐसा था जैसे कि यार मैं खुद से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गया था। इस पूरे फेज़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी एंड काफ़ी मेंटल और इमोशनल लेवल पे एक एग्जॉशन आ गया था। प्लस कुछ गलतियां मैंने खुद से भी की थी, तो वो सब चीज़ों का एक बर्डन था, इमोशनल बर्डन एंड बैगेज था जो कि मैंने रिलीज़ किया बस। एंड मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं अपने ही वर्जन को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने ही आप को मिस कर रहा हूँ। मैंने जब देखा कि यार मैं कैसा हो गया हूँ पिछले 1 साल में, मतलब 15 अप्रैल के बाद चीज़ें जो कुछ भी हुई, जैसा भी एक्सपीरियंस मिला लाइफ का, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। वो पूरा का पूरा फेज़ बहुत ज़्यादा मनहूसियत से भरा था मेरे लिए। स्टिल आई मैनेज टू ओवरकम दैट। एंड अब मैं जाके समझा कि यार मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ 15 अप्रैल के बाद से अपनी साथ हुई हर चीज़ों को, तो लगता है यार मैं कैसे उन सब चीज़ों को झेल रहा था, कैसे पास किया उन सबको। लिटरली कभी कभी लगता है कि यार अगर उस समय थोड़ी मेंटल टफनेस नहीं दिखाई होती तो मामला ख़त्म था। तो उस समय ये भी था कि मैं अपने पुराने वर्जन को बहुत मिस करता था। 2024 का जो वर्जन था, उस समय मैं कितना खुश रहता था, उस समय मैं कितना एनर्जेटिक रहता था। मैं उस फेज़ को मिस कर रहा था कि यार वो 2024 का जो श्री पांडे था, उसकी जो एनर्जी थी, उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जिस तरीके से वो चीज़ों को अप्रोच करता था, वो अलग था। ऑल्दो अभी का जो मेरा न्यू माइंडसेट है, न्यू थिंकिंग है, न्यू अप्रोच है टुवर्ड्स माई वर्क, वो भी बहुत इंटेंस है। इतना फोकस 2024 वाले वर्जन में नहीं था, बट हाँ स्टिल 2024 वाला वर्जन बहुत ज़्यादा खुश रहता था, जो कि 2025 वाला वर्जन नहीं था। सो एनीवेज चीज़ें बदल गई, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे वही चाहिए जो मैं था। फोकस के साथ काम तो करना ही है, मेहनत तो करनी ही है एंड हर चीज़ में अच्छा तो करना ही है, बट अंदर से खुश रहना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं 1 साल से नहीं रह पा रहा था। कुछ ना कुछ हो जा रहा था, कभी डेथ देख लेना, कभी सेटबैक्स देखना, कभी कुछ किसी चीज़ के लिए ट्राई करना बट वो हो ना पाना, बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी। तो वो जो एक फेज़ था मेरा, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। मैं सोचा कि यार भाई मैं कब वो वाला श्री पांडे का वर्जन बनाऊंगा वापस, वो कब आएगा 2024 से उठकर, क्योंकि वो मैं उस वर्जन को बहुत मिस कर रहा था एंड फाइनली वो आ रहा है। कल सुबह में जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, 2024 का श्री पांडे आ रहा है। वी आर सो बैक। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आखिर में मैं बस यही कहूँगा, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर। टेक केयर एवरीवन।